Thousands of people gathered on this busy highway in that arrangement that was made. 116 poor people, most of them from the lower economic strata, and most of them women and children. As the deaths have been confirmed and are constantly being updated, what exactly happened? It was in Sikandar Rao village in Hathras, which is in Uttar Pradesh. A religious congregation was being organized of one Bhole Baba, who is quite popular in that belt, in that region. A stampede broke out when he was about to leave. And then women and children have specifically suffered in this case. The big question is exit arrangements, proper arrangements, welfare, all that you see right now happening wasn't there when it was needed. There were uneven roads that further escalated the chaos. The hunt is now on for this Bhole Baba. Where is he? Why is he missing? Why is he absconding? Why hasn't he put out a statement? Why isn't he cooperating with the investigation agencies? Chief Minister Yogi Adityanath has taken stock of the relief measures. He is likely to also visit some of those injured. But it's what the eyewitnesses are revealing that's most shocking. What exactly happened? How were people, hundreds of them, getting buried as one by one they were being toppled over by crowd? And what about the arrangements? And who will take accountability? Why was such an event organized without prior arrangements? I'm actually at the spot where the unfortunate, tragic incident took place that has already claimed 116 lives. Now, this is the Fulrai ground where the satsang was organized. Just to give an understanding to our viewers, the crowd capacity at this location is 1 lakh. But the reason this mishap caused is A, because of the terrain, which is uneven. 2, because it was raining, because of which a lot of people who fell down initially because of the commotion, they couldn't immediately get up. Now, when the commotion continued, a lot of chaos happened and people could not move, resulting in an unfortunate stampede where mostly women and children have lost their lives. Now, NDRF is right now here stationed. They're also taking an understanding if at all there's anyone who's left behind. It's unlikely right now, but you can see medical assistance is here. What is one of the other reasons that we are told by many locals for the delay is that the immediate attention to all those who were grievously hurt, there was a slight delay in that, but right now adequate help has reached the spot. There are doctors that have also been pulled in from adjoining areas, and many of them who are injured have also been now taken to hospitals nearby Eta and the Hathras region. There's also an inquiry that's been ordered by the Chief Minister. He himself will be visiting Hathras tomorrow. And what we are learning, Harshit, that not just people from Uttar Pradesh, people from Haryana, Rajasthan, a lot of people in buses had packed and come to this very location where this unfortunate incident took place. दीक्षित जी, क्या हुआ पूरा यहाँ पे? जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ से भोले बाबा जा रहे थे इधर से, तो उनके पैर छूने के लिए, कुछ भी करने के लिए भगे आदमी, तो भगदड़ मची, तो उसका आदमी कुछ दब गए नीचे, पैरों के नीचे, और कुछ इधर सामने यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे कुछ आदमी इधर जो रोड पकड़े थे उसके ऊपर भगदड़ मची इस गेट से, तो उधर जाके गिर गए। तो उसको जो सेवादार थे उनके, उन्होंने निकाला, हम भी निकालने के लिए गए तो हमसे उन्होंने मना कर दिया, जाओ यहाँ से, आप कोई भी हाथ में लगाओ इनसे। हमने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, उन्होंने मोबाइल छीन लिया, वीडियो नहीं बनाने दी, न फोटो खींचने दिया, और हमसे बोले यहाँ से चले जाओ, नहीं बहुत मारेंगे। क्या मानते हैं पूरी तरह से अव्यवस्था थी और लापरवाही थी यहाँ पर? बिल्कुल लापरवाही थी, इन्होंने पुलिस प्रशासन की सहायता नहीं ली, तो पुलिस का इंतजाम बिल्कुल नहीं था। जब कहते तभी तो मिलता। मैंने मने करी सवेरे, मैंने मत जाए तू, मैंने के 2 दिन पहले गई, मैंने के और तू मैंने के 10-15 दिन पैसा महीना खान पी के चली जाओगे, सुन नहीं मानी बेटा, मेरे मुँह पर झज्जरा पड़ोगे, तुम कहाँ करोगे तो जान दो, कहीं और चुप पड़ोगे, आज आवन नहीं दी तो भाई मान जाती, मतलब हूँ ज्यादा लागत करते तो मान जाती, ऐसी वो नहीं बुकती, पर बेटे की वजह से माने को हूँ, मैंने कहा बुकर रहो जाएगी तो मैं जान दो। कोई बाबा बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा हो। तो बच्चे की उम्र समथिंग 3.5 साल है, ये मेरा भतीजा लगता है। हम लोगों को तब पता लगा जब जैसे बहुत से लोग अपनी गाड़ियों पर पहुंच चुके होते हैं और ये काफी टाइम तक नहीं पहुंचे हुए होते हैं, तो ढूंढने तलाशने के बाद में तो फिर वहां पता लगता है कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई है। तो हमने सोचा शायद कहीं ऐसा तो नहीं है ये, और वहां सुनने में भी आ रहा था कि बहुत से लोग गंभीर भी हैं, तो हमने मेडिकल वगैरह में भी देखा, नहीं पता लगा। फिर उस पर लाइव देख रहे थे, उस पर टोल फ्री नंबर आ रहे थे जिस पर पता करा गया, तब जाके इसका पता लगा। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है,
जो इंसान गिर गया वो उठा ही ना है, फिर कुचल कुचल के सब मर गए। पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग जगह पर डेड बॉडीज भेजी गई हैं और प्रयास यही है कि जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए। इसमें कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। जो भी धाराएं होंगी उसके अंदर आपको एफआईआर की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी। जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन ली है उनके विरुद्ध एफआईआर होगी, इन द सेंस कि जितने की परमिशन मांगी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल के आई हैं। और क्योंकि ये जांच का विषय है, इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। वो जैसे जांच में और चीज़ें आएंगी आपको अपडेट किया जाएगा। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। इस वक्त हम लोग पंडाल के ठीक बीचों बीच मौजूद हैं। मेरे पीछे स्टेज है और दूसरी तरफ मेन रोड है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस चारों तरफ आपको अगर दिखाऊं, और ये आप देखिए, ये इस तरीके की बल्लियां लगाई गई थी। ये लोहे का एक स्ट्रक्चर लगाया गया था और इसको कवर किया गया था ऊपर से। यहाँ पर परमिशन मांगी गई थी आयोजकों की तरफ से 80,000 लोगों की। अब आप सोचिए और ये तैयारी देखिए और ये देखिए कितनी दूर तक ये पंडाल है या कितनी दूर तक ये जो पूरा इलाका है। अगर 80,000 लोग भी आ पाते तो क्या ये जगह या ये जो तैयारी थी ये काफी थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 80,000 लोग अगर इन जगहों पर पहुंच जाते तो अपने आप में ये जगह पूरी तरीके से भर जाती और उसको लेकर के सुरक्षा के कोई भी इंतजाम आई विटनेसेस के मुताबिक यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, मांगी तो 80,000 की गई और 2.5 लाख गई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भी इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो जितने लोगों की परमिशन मांगी जाती है उससे ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं और यही प्रशासन जो है अपनी मुस्तैदी दिखाता है और आयोजकों के ऊपर प्रेशर बनाता है। एक तो लोग कम से कम पहुंचे इसकी कोशिश करता है, वहीं साथ साथ कोशिश ये रहती है कि अगर लोग पहुंचते हैं तो किस तरीके से भीड़ मैनेज की जाएगी। अगर कोई हादसा होता है या कोई गड़बड़ी कहीं होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। मौके पे कई सारी एम्बुलेंस भी मौजूद रहती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद रहती हैं, पूरी तैयारी की जाती है, मेडिकल किट रहती है, डॉक्टर्स की टीम रहती है कि अगर कोई परिस्थिति अगर खराब होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। लेकिन इन पंडाल को देखकर, इस पंडाल को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस परिस्थिति में और किन तैयारियों के आधार पर इतने सारे लोगों को बुला लिया गया। लगातार सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे थे वीडियोस जिनके जरिए लोगों को यहां पहुंचने के लिए आग्रह किया जा रहा था। तमाम लोग रोड से पहुंचे, लेकिन न जाने क्यों यहां की पुलिस समझ नहीं पाई। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ हिमांशु मिश्रा, हाथरस। थाना सिकंदराव पे एक एफआईआर रजिस्टर की गई है जिसमें कि जो क्रिमिनल केस है उसको देखा जा रहा है और साथ साथ एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिसका काम यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या थे, कहीं कोई लैप्स तो नहीं है, किसी भी चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो चाहे कोई व्यक्ति हो जिसने गलती की है, जिसकी लापरवाही है, जिसकी क्रिमिनल एक्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आखिरी सवाल, कितने लोग मिसिंग हैं? अभी भी बहुत सारे लोगों से हम मिले जिनकी अपने परिवार से मतलब मिल नहीं पा रहे हैं। अब तक आप लोगों के हिसाब से कितने लोग हैं और उनकी मिलाने के लिए क्या प्रक्रिया है? मेन काम अभी यही हमारा बचा है। करीब 20 ऐसी बॉडीज हैं जिनकी शिनाख्त होना शेष है। उन सब की फोटो हमने मंगा ली है और जहां जहां पे मॉर्चरीज हमारी हैं पुलिस अधिकारियों को वो फोटोज हमने दे दी हैं ताकि जो भी परिवार ऐसे आ रहे हैं उनको फोटोज दिखा करके हम जल्दी से विश्लेषण कर पा रहे हैं। Let's try and get an update on this and remember how tragic it is, the sort of stampede. Why was such an event allowed? Where were the arrangements? Who is this Baba and why are people thronging at such large numbers for him? And where is he presently, knowing 116 people have died at his event? I want to bring in Shreya Chatterjee for the latest on this. Shreya, what is the latest do we have with regard to authorities? Local administration cannot get away. They did give permission for it. Why did they not ensure and try to find out how many people were gathering? Because this wouldn't have been the first time that such a large gathering of people would have congregated for him.
Well, absolutely, it is not the first time, Pooja, because there have been multiple reports that even during the time of COVID, there have been such violations on the part of this particular godman, and his gatherings usually attract a huge number of crowd. So clearly, it's impossible for the administration to not know the kind of possibility of the people who could have gathered in this area. Now, just to give a sense of understanding that this particular ground, it has a capacity of at least 1 lakh. Now, the permission was taken for 80,000, but clearly 2.5 lakh, it itself speaks for the humongous amount of people who had gathered at the spot. And the commotion that created was because of the fact that there were no crowd management that was done, neither from the part of the administration nor from the part of the organizers. And that's the reason this was clearly a death trap, which has now claimed 116 odd lives, mostly women and children, in this horrific, unfortunate incident.